शाह करीमा। گہرے دوست اس دن کسی دوست کے کام نہیں آئے مگر پرہیزگار یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لیے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنہ، جو لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان لائے اور مسلمان تھے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ قیامت کے دن کا منظر یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ، کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا مگر جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے۔ یہ حشر کی بات میں بتا رہا ہوں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، میدان محشر میں بیوی بھاگے گی شوہر سے، شوہر بھاگے گا بیوی سے، بھائی بہن ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ساری رشتہ داریاں ختم۔ حشر کے میدان کا آپ مت سوچیے، لوگ تو بھاگ گئے نا، کام نہیں آئے نا، اب آپ سامنے ہیں، اب آپ کا حال کیا ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک کان، آنکھ، دل، یہ سب گواہی دیں گے، یہ سب گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں جو وہ کرتے تھے، آپ کا پاؤں آپ کے خلاف، آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف، آپ کی زبان آپ کے خلاف، آپ کا کان آپ کے خلاف، ایک ایک عضو آپ کے خلاف ہوگا۔ ایسے عالم میں غمگسار کی ضرورت ہوگی، نیا کو پار لگانے والے کھیونہار کی ضرورت ہوگی۔ ایسے عالم میں آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگ تو کیا کریں گے تو معلوم ہے، یہیں سے تیاری ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ وہ لوگ کیا ڈائریکٹ والے جن کے یہاں کچھ وسیلہ ذریعہ سبب کچھ ہے ہی نہیں، ان لوگ کا تو حال اتنا بھیانک ہوگا، جائے گا مشورہ کرے گا کیا کرے، بولے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، تمام نبیوں کی بارگاہ میں جائے گا، ایڈریس ملے گا، جاؤ وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ۔ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے گا، کسی مولوی سے پوچھئے ارے تو آ جائے گا نبی کے پاس تو کیسے نبی سے مخاطب ہوگا؟ اے بیٹھو، اے میرے لال، بیٹھو 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 بیٹھو، سن لو، جینس، تم لوگ جینس کو جو پہنتے ہو وہ ہم کو پرابلم ہوتا ہے، اتنا بھیانک کپڑا آ گیا ہے کیا کہیے گا، کپڑا کو پھاڑ دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اٹس مائی اسٹائل، اتنا خراب کپڑا پہنتا ہے، نہیں سمجھے؟ جینس والا میرے بھائی ایسا کپڑا مت پہنو، استنجا کرتے ہو 50% باہر 50% اندر۔ ایک آدمی بولا حضرت آپ لوگ کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے یہ کپڑا اتنا ہے نا بالکل بڑھتا رہتا ہے
देख इतना बढ़ता है तो चमड़ा में घुसता रहता है ना, ऐसा कपड़ा तुम क्यों पहनते हो? ना ना ऐसा, अच्छा कुछ तो और ऐसा कर दिया, मैं जरूरी समझता हूँ, बता दूं। पहले ये नाक है ना, नाक यहाँ पे जो है इसको क्या कहते हैं आप लोग? नाभि। तो पहले नाभि पर लोग कपड़ा पहनता था, नालायक सब। अब उससे नीचे ले आया, इतना नीचे ले आया है कि बार बार उसका पैंट नीचे ही जाता रहता है। हंसते क्या है, उठाता रहेगा। क्या कर रहे हो? हजरत पैंट ठहरने का नाम नहीं ले रहा। इतना घटिया कपड़ा पहनता है, हंसो मत दोस्तों, मेरे रोने का मकाम है। इतना घटिया पहनता है, वो कपड़ा पहने रहता है। झुका बोला, हंसते क्या है? आप लोग तो देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, हमको तो मौका मिला बता दे रहा है। झुका इधर नंगा ओपन। अरे बेवकूफ, दूसरा आदमी तुझे टच न किया, हंगामा की वजह से दिल पे हाथ रख के सोच, घर में तू यही कपड़ा पहने रहेगा, तेरी माँ की नजर उस वक्त उस पे पड़ेगी तो क्या सोचेगी? तेरी जवान बहन की नजर पड़ेगी, हया के मारे उसका हाल क्या होगा? तेरे बच्चों की नजर पड़ेगी। अरे नादान ये वेस्टर्न कल्चर, जिसने कपड़ा पहना के निरंगा कर दिया, फिर भी उसी को पसंद करते हो, उस लिबास को क्यों नहीं पसंद करते हो जो कपड़ा मेरे नबी को पसंद है? हटाओ ऐसा कपड़ा। हम तो कहते हैं कि मेरे पास जिन्नात रहता ना तो मैं 2-3 जिन्नात को इस काम के लिए रखता कि जो लड़का मुसलमान ऐसा कपड़ा पहनता है गर्म पानी डाल दिया करता। मेरे पास जिन्नात है नहीं, मेरे कब्जे में मुवक्किल है नहीं। ऐसा कपड़ा न पहनो कि पहन के नंगे हो जाओ। अरे कपड़ा मामूली हो लेकिन शक्ल की हिफाजत होती रहे। तुम्हारे कपड़ों को देख के लोग ये न कहे इधर वाला है उधर वाला है, तुम्हारे कपड़ा ही बता दे मुस्तफा वाला है, अली वाला है, नबी वाली। ये पैंट वाला न उठता ना, हम बीच में आते हैं। ये पैंट वाला उठ गया था, अल्लाह टाइम हो रहा है, बहुत जल्द मैं आपसे रुखसत होने वाला हूँ, लेकिन इस बात को मैं मुकम्मल कर दे रहा हूँ। हश्र में तमाम बदअकीदे आएंगे और आने के बाद नबी से क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि या रसूल अल्लाह तो कहते नहीं, या रसूल अल्लाह कहना हराम, या रसूल अल्लाह कहना शेर, या हबीब अल्लाह कहना ऐसा, ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई? अब वो लोग कहेंगे क्या? क्यों ही कहेंगे या मोहम्मद, फरिश्ते इतनी मार मारेंगे ना, छठी रात का दूध निकल जाएगा। बेवकूफ, बदतमीज, नबी का नाम लेता है, नबी का नाम लेता है, करिए बेवकूफ, कितना बड़ा बदतमीज है। अरे मेरे भाई, अगर किसी के बेटे का नाम सुलेमान हो, बाप का नाम उस्मान हो, ठीक है, और अपने बाप से जाके कहे उस्मान साहब, लोग क्या कहेंगे? पैदाइशी बदतमीज लग रहा है, आपका नाम सामने मिलेगा। ये कितने बड़े बदतमीज है जो नबी के सामने या मोहम्मद के मुखातब कर रहे हैं। फरिश्ते ये कहे थे कि कुछ दर्द का हमें दर्द की दवा मिल जाए, हम का मदावा हो जाए, और फंस गया। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को आदत पड़ी हुई है या रसूल अल्लाह कहने की, जब देखेंगे कोई काम नहीं आया, वो जाएंगे नबी की बारगाह में, उन्हें सोचना न पड़ेगा, आदत पड़ी थी वो कह देंगे बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहने की आदत डालिए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। अगर कोई बोले या हरफे निदा है, या रसूल अल्लाह क्यों बोलते हो, सिर्फ या अल्लाह बोलो, तो आप लोग कहिएगा हरफे निदा क्या है? ये मैं नहीं जानता। अलिफ किसको कहते हैं, हमजा किसको कहते हैं, ये मैं नहीं जानता। माँ ने दूध पिलाया है, मेरे मदरसा दारुल मोहम्मद रजा में चलो, मसूदी साहब से पूछ लो, फिर तरीक़त अल्लामा नासिर मिल्लत है, जरा पूछ लो। वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इनके बड़े बड़े भी आला हज़रत के पास ना आए तो इनके छोटे गुलाम अहमद रजा के पास क्या आए, दाएं बाएं भागेगा। तो आप कहिएगा सुन, आज तू बोल दिया, दोबारा अगर बोलेगा ना, ज़बान मेरी, एनर्जी मेरी, मुंह मेरा, मैंने तुझसे पूछा तो नहीं, तू बीच में बोलने वाला होता है कौन? तू होता है कौन? तुझसे पूछा हो तो नहीं, तू है कौन? तू बोलेगा क्यों? तू फतवा लगाएगा, आज बोल दिया, दोबारा बोलेगा इतनी मार मारूंगा, दिमाग खट्टा कर दूंगा। अबे बेवकूफ, मैं बोलता हूँ तू भी बोल ले, वरना याद रखना यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाएगा। जब नबी की बारगाह में जाएगा तो
सबको शुगर की बीमारी से बचा। जिनको शुगर है मौला उसका नॉर्मल फरमा दे। या अल्लाह सबको कैंसर से बचा। दुआ हो रही है आमीन की सजा बुलंद होनी चाहिए। या अल्लाह सबको एक्सीडेंट होने से बचा, सबको गुटखा से बचा, सबको वहाबी से बचा, सबको देवबंदी से बचा, सबको राफजी से बचा, सबको गलत लोगों से बचा, जहन्नम से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर सुभान अल्लाह की आवाज लो हुई दुआ वापिस। पूरा मिलना हवा में हाथों से लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वजू किया, नासरी मिल्लत ने भेज दिया था, जाओ बाप तुम्हारा मर रहा है, वजू कर लो। क्या करेंगे? बोले वजू कर लोगे तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ दोगे, ठीक है? हाँ पाले में जाकनी में तो आया तो वजू किया जैसे तैसे, कुरान लाया, चूम लिया। चूमना चाहिए, कुरान शरीफ चूमना चाहिए, ठीक है? चूम लिया। हजरात एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग कुरान सही नहीं पढ़ना जानते हैं वो कुरान न पढ़े, गुनाह होगा। सही पढ़ें तब पढ़ें। हाँ पढ़ नहीं पाते हैं तो उसको सिर्फ मोहब्बत से देख लीजिए तो सवाब मिलेगा। मोहब्बत से देख लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए तो सवाब मिलेगा। लेकिन सही पढ़ना नहीं जानते हैं तो मत पढ़िएगा वरना गुनाह होगा। ऐसे लोग कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की पढ़ना। क्या मैं करता हूँ, अफसोस होता है। आप लोग हैं, जी हाँ है, मौलवी साहब को समझते हवा पानी, और आपका हाल ये है सायकुल सफाहा ओ मिनन्ना आसे मा वल्लाह। अरे तेरा बाप मर गया है क्या? कुरान के ये ऐसे पढ़ा जाता है? ये लोग पढ़ते हैं मेरे भाई, अब क्या सोच रहे हैं? जरा सी स्पीड बढ़ा देते हैं, कहता है दिल कर रसूलो फतल्ला बादम अना बा। इसका दादा मर गया है। कुरान के ये ऐसे पढ़ा जाता मेरे भाई, ऐसे कुरान न पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह की कसम कुरान का पावर ये है, कुरान की तासीर ये है, कुरान की बरकत ये है कि और असहाबे रसूल ने नबी का मौजज़ा देखा, कभी शकुल कमर को देखा, कभी खारी को एक पानी को नीचा होते देखा, कभी लुआमे बहने मुस्तफा का कमाल देखा, कभी ईमान लाए। लेकिन एक सहाबी ऐसे है जिन्होंने मौजज़ा देख के कलमा न पढ़ा, नबी के लुआब का कमाल देख के कलमा न पढ़ा, बस ये था उनकी मां ने सूरत का की तिलावत किया था, हजरत उमर ने सुन लिया था और तो क्या किया, ए फातिमा जब कुरान ऐसा है तो आमना का नाम गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला थे जिन्होंने कुरान सुन के ईमान की दौलत हासिल किया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा खर्चा कीजिए जोर से। कुरान शरीफ इस तरह जो आप लोग पढ़ते हैं और उसी में गदगद रहते हैं, वाह वाह वाह। अरे कभी तो सोचिए मदरसे के असातिज़ा हाफिज़ कुरान जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आप कैसे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अरे ये कुरान पढ़ा जाता मेरे पास। अरे कभी तो सोचिए हजरत ऐसे पढ़ते हैं, हम ऐसे क्यों पढ़ते हैं? कभी तो सोचिए, फिर जाके क्वेश्चन कीजिए हुजूर কি করব, আপনি ভালো রকম পড়ে কোরআন, আমার হয়নি কি করব? কি করব? মেহনত করো, চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। मां के पेट से थोड़े पैदा हुआ है सब पढ़ लिख करके, ये तो पैदा होने के बाद में सीखा। लेकिन कोई बदअकीदा बोले निसार ने सच कहा है, कनपट्टा झंझरा के कहिएगा हम शुदा पैदा होने के बाद पढ़े और मेरा खास मां के पेट से हाफिज़ कुरान पढ़ के पैदा हुआ। ये 18 पारा का सुनिए। इसलिए कोशिश कीजिए सही कुरान पढ़ें, नहीं समझे? और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब गया बेचारा, अब कुरान लाया, चूम के ढूंढ रहा है सूरह यासीन है कहाँ, ढूंढ रहा है इधर से उधर, इधर से उधर। कभी कुरान पढ़े तब ना उसको समझ में आए ना, उसको क्या मतलब है। बस हजरत ने सोचा कि मदरसे का मुआविन था, हम भी जाके उसकी खबर ले लें। तो गए, जरा देखा ये क्या कर उलट पलट अभी तक कर ही रहा। बोला क्यों लो? बोला ठीक है वो सूरह यासीन नहीं है, सूरह यासीन नहीं है, नहीं है। बेवकूफ 22वां पारा खोल, सूरह फातिर के बाद देख लिया, अब शुरू किया, अब मरने वाला है।
ہچکی کی آواز آ رہی ہے، اب روح نکلے تو اب بچہ شروع کیا یاسین، اب آپ کو دیکھا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہر آیت میں دیکھ رہا باپ کو مرا کہ نہیں، ہر آیت میں دیکھ رہا ہے۔ اب جو ہی روح نکلی قرآن پر، روح نکلی قرآن پر، نبی فرماتے ہیں قرآن خوشی میں بھی پڑھو غم میں بھی پڑھو، اگر میں چاکری میں کوئی ہو سورہ یاسین پڑھ دو، حیات ہوگی تو بچ جائے گا، شفا مل جائے گی، ماں دعا ہوگی تو اچھے سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی ہے، قرآن شریف آپ لوگ کو کیا معلوم ہے، دارالعلوم امام محمد رضا میں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیے، پڑھائیے اپنے بچوں کو، میرے بات کتنا بینیفٹ ہوگا آپ کو معلوم ہے، میں بتا دوں، لیکن پہلے خرچہ کیجیے گا۔ ہاں اب ٹائم آ گیا ہے، نکالو کیا موبائل سے، نکالو، کیا سمجھ رہے ہیں، ہیوی مصرع ہے، ہاں زبانی بھی مجھ کو یاد ہے لیکن ابھی میں نہیں پڑھوں گا، ابھی ٹائم آنے دیجیے۔ سن لو اماں، تم لوگ سنو اور آپ لوگ بھی سنیے، انتقال جب ہو جاتا ہے سمجھ گئے تو مٹی دینے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، چہارم، تیجا، 20واں، 10واں، 25واں، 27واں، 28واں، آخری میں 40واں کر لیتا ہے تو بیٹا سمجھتا ہم نے حج کر لیا، اس کا پھر کبھی ماں باپ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہوا تو شب برات میں چلے گئے اور جانے کے بعد ایک مٹھی نہیں مٹھا اگربتی قبر پر ہی جلا دے گا، اور یہی موقع مل جاتا دیوبندیوں کو، کہتا دیکھو قبر پہ جلایا، غلط کیا تب نا، مسئلہ ہے قبر پر اگربتی نہ جلاؤ، قبر پر نہ جلاؤ، سائڈ میں کہیں جلا دو، اور نہیں بھی جلاؤ گے تو کوئی بڑی بات نہیں، جلانا فرض نہیں ہے، خوشبو نیت ہو، یہ نیت مت کرنا جلائیں گے تو میرا باپ سونگے گا، یہ سب نیت نہیں ہونی چاہیے، خوشبو مقصد ہو، نہیں جلائے تو نہیں جلائے، قبر پہ نہیں جلانا چاہیے، بس آگے وہ شابان میں زیارت کر کے بس ہو گیا، لیکن کیا کہنے اماں، تم لوگ سن لو، خرچہ پانی آپ لوگ کیجئے تو ہم بتا دے رہے ہیں، زور سے نبی فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہو، بیٹا کوئی ماں باپ دونوں یا کسی ایک کے قبر پہ جا کے سورۃ یاسین کی تلاوت کرے تو اس کی برکت سے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی، پڑھنے والے اولاد کی بھی مغفرت ہو جائے گی، یہ سورۃ یاسین کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طاہر رضا صاحب آ گئے ہیں، اب ان کو ایک مصرع میں سنا دے رہا ہوں، لیکن پہلے یاد رکھیے گا، قرآن پڑھیے، لہک کے پڑھیے یا رسول اللہ، ہاتھوں سے پڑھیے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ ہم لوگ قرآن لوگ کہتے ہیں دیکھیے پڑھنے کا دل کرتا ہے لیکن کی کربو আমার কাছে সময় নেই, কি করবো, রাত্রি সময় না বেলা সময় না সন্ধ্যার সময় না মর্নিং সময় কি করবো, পড়তে পারছি না, চেষ্টা করলে পড়তে পারছি না, কি হলো সময় নয়, ससुराल जाने का समय आज, खाना खाने का समय आज, नमाज पढ़ने समय नहीं, कुरान समय नहीं, अब मोबाइल टिपना आज। हजरत मुस्ताफ, मैं माजरत के साथ बोलना इस कौम को मैं बता दे रहा हूँ, मेरे भाई को बहुत अफसोस की बात है, एक नई बीमारी आई है। अब लड़का सब लड़की को ढूंढता है मोबाइल में, फेसबुक पे चॉइस करता है, और जब कांटेक्ट हो जाता है तो व्हाट्सएप पे राब्ता रखता है, और जब शादी हो जाती है तो गूगल से बच्चा का नाम ढूंढता है। अब कुछ लोग ये तो करते हैं, कुछ जलसा वाले यूट्यूब से मौलाना निकालते हैं, शायर निकालते हैं, हाँ खतीब निकालते हैं, यूट्यूब से। अरे मेरे भाई, यूट्यूब पे तुम देख रहे हो कौन मुकर्रिर है क्या है, कुछ तुमको मालूम नहीं, देखा चिल्ला रहा है भी, आवाज अच्छी है, तुमने कह दिया इसी को दावत दो। तुमने कभी सोचा ये बदअकीदा है या खुश अकीदा? अरे तुमने देखा ये रजा वाला है, ये रजा का बागी है, ये आवाज में खानका है। मैं आपको इशारे में बता दे रहा हूँ, जहाँ आला हज़रत के मसलक के खिलाफ तालीम होती है, मसलक के आला हज़रत की अदावत का वहाँ निसाब उसे पढ़ाया जाता है, वहाँ का हर कॉन्टेक्ट रखने वाला मौलवी आला हज़रत के मुखालिफ होता है, उसकी तकलीफ पे ना जाइए,
अनेक भालो, अनेक भालो, भालो उसको मारूफ कर दीजिएगा तो कुछ और हो जाएगा। हम मजबूर ही पड़ रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला फरमाए हम लोग के पास टाइम नहीं, लेकिन कुरान ने सबको लाजवाब कर दिया। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। जरूरी नहीं है कि एक पारा पढ़ो, जरूरी नहीं है कि एक पाव पढ़ो, जरूरी नहीं है कि इतना पढ़ो, जितना मयस्सर हो उतना ही पढ़ो, लेकिन सालाना मत पढ़ो, रोजाना पढ़ो। वीकली न पढ़ो, डेली पढ़ो। ईयरली न पढ़ो, डेली पढ़ो, रोजाना पढ़ो। इसलिए कि जो कुरान की यहाँ तिलावत करेगा, कुरान हश्र में शफाअत करेगा। तो बोलो भाई सुभान अल्लाह। हम लोग ये अदब कुरान पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अच्छा मदरसा है तो कुछ बात और मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि तरीक़त अल्लामा नासिर रज़ा साहब रीला मिसवाई माशाअल्लाह तशरीफ फरमाई। उलमाए किराम का चेहरा इतना ब्यूटीफुल, इतना हेवी, इतना हैंडसम, इतना पुरवकार, बारोद, रौनक वाला, बरकत वाला चेहरा। देखिए इधर देखिए ना ठीक से समझिए कि जब खुदा ने मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरा ऐसा है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरा कैसा है? अगर किसी को देखना हो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरा, अब तो देख नहीं पाएगा, उनका कर्म हो जाए तो कभी ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। लेकिन जिन लोगों को अगर देखना हो कि कैसा रहा होगा, तो एक चेहरा मैं बता दे रहा हूँ, एक चेहरा मैं बता रहा हूँ। क्या कहने, जो लोग देखे हैं तो गदगद है, जो नहीं देख रहे हैं वो पूछते हैं केमन छिलेन कादुशरिया জিজ্ঞাসা করছে হুজুর কেমন ছিলেন কাদুশরিয়া, এই কথা হচ্ছে ওই কথা হচ্ছে। ওলমা कहेंगे কেমন ছিল? कामयाबी का सर बुलंदी का अख्तर रज़ा के सेहरा है। माइक वाले भाई 52 किलो का मुकर्रिर है, तुम साउंड बढ़ा दो। बढ़ाइए माशाअल्लाह बहुत अच्छी सेटिंग है। कामयाबी का सर बुलंदी का सर पे अख्तर रज़ा के सेहरा है। अच्छा इस्तफ्ता कीजिएगा उर्दू में क्या फरमाते उलमाए दीन मुफ्तियाने के, ठीक है। उर्दू में जवाब सवाल किया, जवाब मिला, ठीक है। आला तो सरकार तन्हा वन पीस, ओनली वन पीस इन इंडिया, वन पीस। अगर कोई नज़म में सवाल किया जवाब नज़म में, नस्र में किया तो जवाब नस्र में, अरबी में किया तो जवाब अरबी में, फारसी में किया तो फारसी में। ऐसा मुफ्ती कहाँ मिलेगा? और उन्हीं के खानदान का वो चश्म चला सरकार कादुशरिया, जिनसे किसी ने इंग्लिश में सवाल किया तो जवाब फतवा का इंग्लिश में दिया।
लेकिन बहुत शर्त, अंगूठा लगाओ, ये करो, वो करो, यानी राशन कार्ड है तो राशन लो, राशन कार्ड नहीं है जाओ हवा खाओ। बात समझ में आ रही है? हज़रत, राशन कार्ड में नाम आने से आपका राशन चालू हो गया है। हज़रत, जिनको आने वाले से मोहब्बत हो गई है, कसम है मौला शरीफ की, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत, आखिरत में कमाने वाली दौलत, रज़ा की मोहब्बत ने और लोगों के ईमान को बचा लिया है, को बचा लिया है। अगर आला तक होते तो आज हम भी वही होते जो बता दीजिए हैं ये करने बरेली वाले का कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मदीने से दूर हैं फिर भी वफादारी रसूल है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कब्जा कीजिए जरा ठीक से। हाँ, थक गए, अब आप लोग रेस्ट लीजिए, बिल्कुल आप लोग थक गए हैं, कोई बात नहीं है। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है उसके सुभान अल्लाह कहने को कबूल फरमा। जितनी बार तेरा नाम लिया है सबको कबूल फरमा। कुरान जितना मयस्सर हो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा, मेरा इम्तिहान ले रहे क्या? मैं कलेजा फाड़ के आवाज निकालूं तब चिल्लाइएगा, कोई ख्याल नहीं है। मैं धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए अहले सुन्नत, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, क्या कहने वाला, जवाब नहीं देगा, अल्लाह कोई भी नहीं कह रहा तो जिंदा रखे, क्या करेगा? आप लोग लोग सुनिए, जितना कमारा लड़का है सुन लो, शादी करो कल ही नहीं, अपने माँ बाप की मर्जी से। एक ही बात कह देना, अम्मी लड़की ऐसी हो खूबसूरत हैंडसम, लेकिन अम्मी देख लीजिएगा कुरान पढ़ना जानती है या नहीं, नमाज की पाबंद है या नहीं, फरमाइश करो। और लड़कियों तुम लोग सुन लो, अपनी माँ से कह दो, अम्मा कभी न कभी वो दिन आएगा आप मेरी शादी करेंगे, तो लड़का गरीब हो जाए जो भी, इतना देखिएगा आलिम है या नहीं, हाफिज है या नहीं, इसलिए कि एक मौलवी से ज्यादा खुश अपनी बीवी को कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं रख सकता। 5,000 तनख्वाह पा के भी एक मौलाना की बीवी जितनी खुश रहती है, बड़े बड़े मास्टर की बीवी खुश नहीं रहती। वजह है कि मास्टर की तनख्वाह 40,000 पर मंथ, मौलाना की तनख्वाह 10,000 पर मंथ, लेकिन बरकत 40,000 से ज्यादा है। वजह ये है ये दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह उसमें बरकत देता है। हाँ, अच्छा, मौलाना से शादी होगी जिन लड़कियों की, तो बेनिफिट में बता देता हूँ, वो कभी तुम्हारी माँ को गाली नहीं देगा, तुम्हारे बाप को कभी गाली नहीं देगा, कभी बदतमीजी नहीं करेगा, कभी कभी धोएगा, हल्के फुल्के नाराजगी झगड़ा तो होता ही है, नहीं भाई, मियां बीवी में तो झगड़ा होता ही है। कौन है जो बोले झगड़ा नहीं हुआ है? झगड़ा होगा, जरूर होगा, चाहे मौलाना रहे चाहे हाफिज साहब रहे, इमाम साहब रहे, पीएम को तो इतना झगड़ा हुआ, तू पूजा मन पूजा, नहीं समझा? पीएम को क्या काम से झगड़ा होता है? झगड़े का मतलब ये नहीं है कि घर की बर्बादी, अगर कभी किसी को मियां बीवी में तनाज़ा हो जाए तो उसमें हैदर करार कहे खैबर मौला अली की सीरत को जिंदा करो, मस्जिद में चले जाया करो, ताकि तुम्हारे दिल को भी सुकून मिल जाए और तुम्हारा घर आबाद था, आबाद है, आबाद रहा। और भाइयों, नमाज की पाबंदी जो लड़का करे उससे निकाह कीजिए, जो लड़की नमाज की पाबंद शादी से पहले उससे निकाह कीजिए। वजह यह है यहाँ कुछ नहीं है, हमें तैयारी आखिरत की करनी है, कुरान रोजाना पढ़िए। जो लोग परेशान हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों, रोजी रोजगार का मसला लॉकडाउन में बहुत टेढ़ा हो गया, बहुत टेढ़ा, बहुत परेशानियां, तो अपनी अपनी बीवियों को कल से समझा दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, कल से अपनी बीवी को समझा दीजिए कि रोजाना रात में सूरह वाक़िया पढ़े, रोजाना रात में सूरह वाक़िया पढ़े, आपकी बीवी आपकी बेटी और आप भी पढ़िए, खर्चा कीजिए तो बेनिफिट में बता दे रहा हूं। ऐसे ही अरे आपकी मुनाफे की बात होने वाली, आवाज खोलिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
शिकार नहीं होगा। असुर वाक्य है कहाँ? खर्चा कीजिए तो बता दे रहा हूँ। इसवा पारा में सूरह रहमान के बाद सूरह हदीस से पहले है कितनी देर लगेगी पढ़ने में? वो मुश्किल 5 मिनट। आपको 5 मिनट और रोजाना पढ़िएगा तो सूरह वाक़िया के हाफिज हो जाइएगा, और आपकी बीवी भी पढ़े और आपकी बेटी भी पढ़े और आप भी पढ़िए। अल्लाह की कसम कभी फाका आपके दरवाजे पर नहीं आएगी, इबादत भी हो जाएगी, घर में बरकत भी हो जाएगी। अब ये सब करेंगे, जितना मयस्सर हो उतना कीजिए। लेकिन हम लोग जो कुरान पढ़ने वाले हैं, एक से कुरान पढ़ने वाले, कुछ हाफिज साहब हैं जो रमजाने में पढ़ते हैं, दिन भर लगे हुए चिटाई तोड़ रहे हैं। अब मगरिब बाद छा करके दिमाग खराब है, ईशा में क्या पढ़ रहे मेरे भाई। और कुछ हाफिज है जो पहले से रेडी रहते हैं, नहीं समझे? कुछ ऐसे भी हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की आदत है, वो हमेशा यकसा रहते हैं, नहीं समझे? रोजाना पढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हाफिज साहब चाहे कोई कुरान पढ़ेंगे, कितना इंतजार, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, फिर लेके कुरान बैठा, उसके बाद शुरू किया, कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। पेट में दर्द हुआ, तिलावत करा, सर में दर्द हुआ, तिलावत करा, बच्चा को कुत्ता काट लिया, तिलावत करा, घर में आग लगी, तिलावत बना। सही बोल रहा कि नहीं भाई? हम लोग तिलावत करें, तिलावत करते रहे, हम मालूम हो जाए कि फला बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तिलावत बंद होगी कि नहीं भाई? कोई भी जितना बड़ा रहे, लेकिन दोस्तों अल्लाह की कसम कुर्बान जाइए उस कार्य कुरान पर पहले खर्चा कीजिए तो नाम का बता दो। हम कुरान पढ़े, दर्द हो, कुल्फत का सामना हो, तिलावत बंद, लेकिन फातिहा करवाना, शहजादा कुर्बू को राती में दोषे मुस्तफा, परवरदाए मुस्तफा, नूर है ये मुस्तफा, फातिमा ज़हरा के दिल का चैन, हम सुन्नियों का इमाम हुसैन, करबला में कुरान पढ़ा। और हक तो ये है कि जब तक सरतन से लगा था तो भी कुरान पढ़ रहे थे, और जब सरतन से जुदा हो गया तो भी कुरान पढ़ा। हज़रात आज हुसैन आज़म के मानने वाले हैं, सही कुरान पढ़ने के लिए मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों का दाखिला जरूर करवाइए। आप लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, सही, आप आकर के थोड़ी देर एक अलग से कोर्स करवाइए। आप सियाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में सही कुरान पढ़ना आ जाएगा, नहीं समझे? 1 महीना काफी है। अब आप लोग बोलते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कैसा लग रहा बोलने में? और जब मदरसा में आ जाएगा तो सिखा देंगे तो बोलेगा अल्लाह अल्लाह। कितना फर्क है, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह बोलने से ऐसा लगता है जबान से बोल रहा है, और पुर करने के बाद लगता है दिल से बोल रहा है। अल्लाह कितनी खूबसूरती आ जाती है। इसलिए मदरसे में दाखिला करवाइए, और माहौल जैसा भी हो, लॉकडाउन हो, एनआरसी हो, फिनारसी हो, जो हो, लेकिन हम मुसलमान हैं, कुरान से रिश्ते मोहब्बत कायम रहे, नमाज की पाबंदी हो, उलमा का एहतराम करें, मुर्शिद कामिल के दस्ते हक परस्त पे बैठ हो जाए, अपने उलमा का एहतराम करें। और जहाँ भी रहे मेरे भाइयों को मैं टाइम में कह रहा हूँ, आला हजरत का दामन में छूटे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और इंशाअल्लाह आला हजरत की मोहब्बत का इनाम क्या है, तो विषय में मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन पहले मोहब्बत से खर्चा कीजिए तब। या अल्लाह सुभान अल्लाह का सबके गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह सबके रोजी में खूब बरकत अता फरमा, सबको करोड़पति बना दे। देखते हैं ये भी दुआ से अब क्या हामिल करेगा, या अल्लाह सबको करोड़पति बना, और माए किराम को अरबपति बना, क्योंकि उलमा खुशहाल रहेंगे तो आपका फायदा होगा, उलमा अगर नीचे रहेंगे तो आपका खर्चा होगा, नहीं समझे? और माए किराम अगर है खुशहाल रहेंगे तो इमामत फ्री, तिलावत फ्री, कुरान खानी फ्री, फातिहा खानी फ्री, जलसा फ्री, कितना फायदा होगा। इसलिए उलमा ज्यादा आपसे खुशहाल है, समझ गए? देखना इश्क का इनाम भरोसे महशर, देखना इश्क का इनाम भरोसे महशर। हम रजा खान ही कौसर के किनारे होंगे, हम रजा खान ही कौसर के किनारे होंगे। गुफ्तगू का लुत्फ़ लो आप, रोजाना कुरान पढ़िए, सालाना ना पढ़िए, सही सही पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि नबी ने फरमा दिया सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, कुरान सीखने वाला, कुरान सिखाने वाला, वो सबसे अच्छा है। अब आप मदरसे के मौलाना को जो कह दीजिए, नबी ने तो कह दिया है, वही सबसे अच्छा है। जो कुरान पढ़ा रहा है वो सबसे अच्छा
हम लोग उसी को कहते हैं, मौलाना टेंगड़ा, मौलाना टेढ़ा, मौलाना ऐसा, मौलाना वैसा, मौलाना खच्चर, मौलाना भच्चर, मौलाना इतने उलूम निकालते मौलाना में। जब तो ये नहीं देखते हैं तुम सोए रहते हो, मौलाना कुरान पढ़ाता है, तुम आबाद काम करते रहते हो, ये कुरान पढ़ाता है। नबी ने कह दिया वही सभी अच्छा है, जो कुरान पढ़ता है कुरान पढ़ाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दुनिया चुगली तरक्की अता फरमाए। दोस्त बोले आमीन। दीन का किला बना दे, ज़रिया निजात बना दे। और हजरत अल्लामा पीर तरीक़त अल्लामा नासिर मिल्लत की उम्रों में, अल्लामा मसूद साहब की मिला और जुमला साहब की उम्रों में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरात क्या कहने दोस्तों, तकरीर करने वाला दीन की खिदमत करता है, लेकिन बट माने लेकिन इंग्लिश जानता हूँ इसलिए मैंने कह दिया। अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने अपने किताब के हाशिए पर लिखा, दीन का सबसे बड़ा खादिम कौन है? दीन का सबसे बड़ा खादिम कौन है? सच है कि इमाम भी है, मौसिम भी है, ये भी है, वो भी है, सब है, लेकिन सबसे बड़ा दीन का खादिम वो है जो मदरसे का मुदर्रिस है। दीन की खिदमत हासिल करने वाले वही लोग हैं। ये वाइस, ये खतीब, ये सब है, लेकिन ये सब फरा है, असल वही है जो मदरसे में पढ़ाते हैं, मदरसे के मुआवली, मदरसा की खिदमत करने वाले, मदरसा चलाने वाले। इसलिए जहाँ जो इस्लाम के पाक में बहार नजर आ रही है, ये मदरसे की अदा है। ये मस्जिदों में जो इमाम है, ये मदरसे की अदा है। मस्जिदों में जो वासिल है, ये मदरसे की अदा है। हुकूमत की नजर है, मदरसा बंद हो, वो जानता है कि मदरसा किस दिन बंद होगा, ये कौन करेगी न रहेगी। जब तक मदरसा रहेगा, खान अल्लाह, खान रसूल की सदा रहेगी, इस्लाम के नाम लेगा हमेशा जिंदा रहेगा। भाइयों, मदरसे का ख्याल रखिए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए। अशार बहुत है, नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा इंशाअल्लाह सुना दूंगा। मेरी गुफ्तगू में ये हुजूर अल्लामा असगद रजा साहब आ गए, बनारसी, इतना हैंडसम शायर हमारी जमात में कोई नहीं, इतना ब्यूटीफुल, और आवाज इन्होंने तो अभी जलसे से अपने आप को जरा दूर रखा है, अपने आप को दूर रखा है, बिजी मैन हो गए हैं, बिजी मैन हो गए, नहीं समझे? हाँ, वरना मैंने देखा है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तेवर का ये शायर पढ़ने वाला, बड़े बड़े हिंदुस्तान में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस स्केल में, उस सदा में पढ़ने का हुनर कोई नहीं रखते। ये जनाब मौलाना, अच्छा ये भी सुनिए, ऐसा शायर असगद रजा समझ गए कि ये नहीं कि उसका इसका, मौलाना असगद रजा, सुभान अल्लाह, मौलाना हो के नबी की नाक पढ़ रहे, मौलाना हो के अल्लाह अकबर। ये जितने शोराए किराम रहते हैं उसमें सब मौलाना नहीं है। हाँ, मौलाना असगद रजा, अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। यस माय ब्रदर, आते रहिएगा, जाते रहिएगा, रात भर ताकि तेरा भी काम चले, मेरा भी काम चले। मौलाना असगद रजा साहब आ गए हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। अब जरूरी है कि मैंने जो चैलेंज किया था ये भी होशियार हो जाए कि मेरी तरफ कोई नहीं पढ़ सकता है। सुभान अल्लाह, मिसरा तो बहुत ये सुने हुए हैं, बहुत सुने हुए हैं, लेकिन जो मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ, अगर सच्चाई हो तो खर्चा कर लीजिए, सच्चाई हो तो खर्चा कर लीजिए। हौसले को जुनून मिलता है, हौसले को जुनून मिलता है, नब्ज़े ईमान को खून मिलता है। अल्लाह में अकबर रज़ा का सुनते ही, नाम अकबर रज़ा का सुनते ही, आशिकों को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, जितनी बार बोले मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। जितना बार बोलेगा उतना आपसे सवाब है। मैंने भेजा अलग अलग ख्याल किया, अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। अच्छी बात है आप तक जो पहुँच गई है, अमल की कोशिश कीजिएगा। तकरीर सुनना कमाल नहीं, तकरीर सुनने के बाद उस पर अमल करना कमाल है। ये आपका भाई बहुत खुश होगा, मेरा अल्लाह भी खुश होगा, नबी भी खुश होंगे, उलमा भी खुश होंगे जब आप कुरान पढ़ने के आदी हो जाएंगे, नमाज के पाबंद हो जाएंगे। हर घर में आलिम का होना जरूरी है, हर घर में आलिम का होना जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आलिम बनाइए। ये सब मत सोचिए मौलवी बनेगा तो कितना कमाएगा,
اتنا کمائے گا. یہ سب ٹینشن کیا رکھتے ہو؟ یہ تم کو نہیں معلوم. وَلَا تَقْتُلُوا خَشْيَةَ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ دیتا ہے اپنی مرضی سے جس کو چاہے جتنا دیتا ہے. یہ سب پیسہ اس لالچ میں مت پڑھانے گا. شاعر بنے گا تو 1 روپیہ ملے گا، مقرر بنے گا 50,000 ملے گا. اس نیت سے عالم بنائیے کہ میرا بیٹا میرے لیے ذریعہ نجات. اوکے